کچھ بھی کیا میں نے پاکستان کے لیے کیا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے کیا. عمران I really love you. میرے ہو جاؤ, کیا کمی ہے مجھ میں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو 10 PM with نادیہ مرزا اینڈ آئی ایم نادیہ مرزا. ناظرین, اگر دیکھا جائے تو اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے کہیں زیادہ طاقتور ہے سوشل میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں یا پرنٹ میڈیا کی ہم بات کریں تو بڑے سلیکٹڈ اوپینینز ہمارے سامنے آتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں, ان کی آرا ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پر اگر میں بات کروں سوشل میڈیا کی تو وہاں پہ کمپیریٹیولی ایسا نہیں ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس پر بات کر سکتا ہے اور بات کر بھی رہا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر مادر پدر آزادی ہے؟ کیا اس پہ کسی بھی قسم کے کوئی سٹینڈرز یا کسی بھی قسم کے کوئی میجرز کا کوئی امپلیمنٹ اس پر نہیں ہوتا, وہ اپلائی نہیں ہوتے؟ ان چیزوں پہ ہمیں بات کرنی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ ایک ایسی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جو کہ پاکستان کے اور جو ایشیا T20 میچ ہو رہا تھا اس پہ پاکستان کے میچ کو لے کر ہوئی. قندیل بلوچ نامی ایک لڑکی جو کہ ماڈل ہے, شاید ایکٹریس بھی ہے, سنگر بھی ہے, انہوں نے اپنی یہ ویڈیو اپلوڈ کی جو تمام ہی جگہوں پہ مرکز نگاہ بھی ہوئی, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وائرل ہونے کے بعد اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوا. بعد میں قندیل بلوچ کا ایک انٹرویو ہم نے دیکھا, اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایسا کچھ برا نہیں کیا, میری مرضی میں جو بھی کچھ کروں. فیس بک پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ جی میں نے تو جو کچھ کیا وہ میں نے پاکستان کے لیے کیا. لیکن کیا ایسا کچھ کرنے سے جس قسم کی ویڈیوز انہوں نے جاری کی وہ سب آپ کے سامنے ہے, کیا اس سے پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے یا پاکستان کا نام ہو رہا ہے یا نام بدنام ہو رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. بڑے ان کے اوپر لوگوں کے کرٹیسزم ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جس انڈسٹری میں ہے اس انڈسٹری کی امیج کو بھی خراب کر رہی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے قندیل بلوچ سے ہم یہاں پر جانیں گے, اور دیگر شخصیات بھی میرے ساتھ اس سے موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. بڑے محترم ہمارے لیے مفتی نعیم صاحب, ریلیجیس اسکالر ہے, محتمم ہے جامعہ بنوریہ کے. السلام علیکم مفتی نعیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ماریہ زاہد ہے میرے ساتھ, ایکٹریس ہیں, لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ماریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ماریہ آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کا. اینڈ آف کورس دا قندیل بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو. السلام علیکم قندیل, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. وعلیکم السلام. تھینک یو. اچھا قندیل, میں نے پروگرام کے شروع میں دو چیزیں چلائیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو عمران خان کے لیے کہا, پھر آپ کبھی شاہد آفریدی کے لیے بھی آپ نے کہا, پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی آپ نے کہا, وہ سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا بڑا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ, بڑے کنٹروورشل ویڈیوز آپ نے جاری کر دی. آپ کو بڑا اعتراض بھی ہوا کہ آپ کا فیس بک بھی بند کر دیا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس میں پاکستان کے لیے آپ نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے لیے کیا, جو کچھ کیا پاکستان کی خدمت کی, عوام کی خدمت کی. بالکل پاکستان کے لیے اچھا کیا, پاکستان کے لیے اچھا کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں کیا ہر جگہ ہر بندہ ٹھرکی ہوتا ہے, اور بلیو می میچ سے ایک رات پہلے میں آپ کو پروف بھی دے سکتی ہوں کہ وہاں پہ پاکستانی ہمارے کرکٹر کبھی ایک مجھے فون کر رہا ہے, کبھی دوسرا مجھے فون کر رہا ہے. ایک کہہ رہے عمر اکمل کہہ رہے ہیں میرے لیے ویڈیو ریلیز کرو, دوسرا کہہ رہے ہیں میرے لیے ویڈیو ریلیز کرو. واٹ واز دیٹ؟ قندیل سنیں, آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر مرد ٹرک ہوتا ہے, ہر بندہ ٹرکی ہوتا ہے, اس لیے آپ کو کرکٹرز فون کر رہے تھے تو آپ ان کی ٹھرک مٹانے کے لیے اس قسم کی ویڈیوز ریلیز کر رہی تھی؟ آف کورس میں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہی تھی تاکہ وہ میچ جیتے ہیں. دیٹس اٹ. تو وہ خوش تو نہیں ہوئے؟ وہ خوش نہیں ہوئے, لیکن ان کی اپنی وہ ہے نا, وہ تو ان کا وہ مسئلہ پتہ ہے کیا تھا, اس ٹیم کی نا آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی. وقار یونس کی لڑائی تھی عمر اکمل کے ساتھ, عمر اکمل کی پتہ نہیں کس کے ساتھ نہیں بنتی تھی. جب آپس میں ایک ٹیم کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو پھر ایک ٹیم کیسے جیتے گی, مجھے یہ بتائیں. لیکن آپ نے یہ کل انٹرویو میں مانا کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اس بات پہ ریئلائز ہوا جب پاکستان ہارا, مجھے سیریسلی ریئلائز ہوا کہ مجھے اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے تھا. جب پاکستان جیت جاتا اس کے بعد تو مجھے ویسے بھی نہیں کرنا تھا. اسٹرپ ٹیز تو آپ نے اسٹرپ ڈانس ویسے بھی نہیں کرنا تھا کہ پاکستان جیت جاتا, پاکستان جیت جاتا. میں نے تب جھوٹ بول رہی تھی آپ. میں تو صرف بیک اپ کر رہی تھی, میں تو صرف ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی. دیٹس اٹ. یہ تو بعد میں ایشو بناتی نا کہ دیکھیں مفتی نعیم صاحب نہ کرتی. مفتی نعیم صاحب انہوں نے کہا کہ میں صرف ڈانس کروں گی, انہوں نے کہا کہ ہر مرد ٹھرکی ہوتا ہے, اس لیے میں ان کو بیک اپ کر رہی تھی کہ جی اسی بہانے
کہ میں ان کے سامنے اس قسم کا ڈانس کروں گی یا پاکستان ٹیم کے لیے ڈانس کروں گی اور اسٹرپ ڈانس کروں گی اگر پاکستان ٹیم جیت جائے، یہ کوئی طریقہ ہے بیک اپ کرنے کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس میں انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے؟ کس کی خدمت کس کی ہوئی ہے؟ میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی ایسی خرابیاں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ سائبر جو بنایا گیا ہے، جو کسی کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، ذاتیات کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بات تو واضح ہے کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس طریقے سے کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا مادر پدر آزادی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں ہماری مرضی، کیا ہم اس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں؟ بٹ اینی ویز ماریہ ظاہر، ماریہ آپ کی کمپلین جو کسی کے تھرو مجھ تک پہنچی تھی آپ سے، مطلب آپ جس انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں ان کی، کہ جی ایسے لوگ مطلب قندیل بلوچ جیسے لوگ پوری انڈسٹری کو بدنام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کی وجہ سے کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن یہ صرف قندیل بلوچ ایک کیوں؟ ایسے تو ہزاروں ہیں، مطلب اچھا برا ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے، ہماری بھی ایون دو ہم کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ کرتے ہیں، ہم جرنلزم میں ہیں، لیکن تب بھی ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ہم اچھے برے ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا کمپلینس ہیں؟ دیکھیں ہماری کمپلینز یہ ہیں کہ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کسی سے کوئی پرسنل، یہ اس کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ جو کرے، لیکن آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو، آپ اپنے کلچر کو پورٹری کرتے ہو، اپنی ویلیوز بتاتے ہو کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس طرح کی حرکت کر کے اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ بہت آگے جاؤ گے، تو ایسے لوگوں کو میں ببلز سمجھتی ہوں، یہ ببلز یہیں آئیں گے اور کب پھٹ جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، غائب ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم بھی تو کام کر رہے ہیں نا۔ کون ہو؟ کون سی دکان ہے تمہاری؟ میں نے تمہاری دکان نہیں دیکھی، کون ہو تم؟ میں تمہیں بتاتی ہوں میری کون سی دکان ہے، میری بات سنو، میری بات سنو۔ دیکھو بیٹا میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتی، پہلی بات یہ کہ میں اس بندے کو کامنٹ ہی نہیں کرتی، نہیں میں بھی تم سے بات نہیں کر رہی، میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، اس لیے میں تمہارے اوپر کوئی کامنٹ میں بھی تمہیں نہیں جانتی، اوکے میں ڈیسائیڈ کرو کہ تم ہو کون، آیا کہ تم ایکٹریس ہو، تم سنگر ہو، تم ہو کیا؟ میں سب کچھ ہوں، میں آل راؤنڈر ہوں، اوکے میں آل راؤنڈر ہوں، ٹھیک ہے کچھ بھی کروا لو۔ عورت خود اجازت دیتی ہے مرد کو کہ وہ اس کے ساتھ ٹھڑک پن کرے، اینڈ یو آر ون آف دیم، جو میں نے تمہارا حال دیکھا اور جو میں نے سنا ہے، تمہارے ساتھ ٹھڑک پن نہیں کرتا ہوگا نا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ایسا ہے نہیں دکھانے کو، تمہارے پاس کچھ ایسا ہے نہیں دکھانے کو۔ یہ بلو دی بیٹ میں تو بولوں گی، مجھے بلایا ہے میں بولوں گی، ٹھیک ہے جو میرا رائٹ ہے، کیوں بلائے شو پہ؟ آپ کو نہیں پتا کہ میں منہ کاٹوں، میں کسی کو معاف نہیں کرتی نا۔ تم جیسے لوگ لڑکیوں کے لیے، شریف گھروں کی لڑکیوں کے لیے مشکل پیدا کرتی ہو، تم جیسی عورتیں۔ شریف گھر کی عورت تو گھر میں بیٹھو، ٹی وی میں کیا کرنے آئی ہو؟ بالکل ہماری گھر میں بیٹھو نا۔ یہ تم جیسے جو لوگ ہیں نا ہمیں بدنام کرتے ہیں، جو ایک مچھلی جو پورا تالاب گندا کرتے ہیں، یو آر دیٹ فش۔ ہاں اچھا ایک سیکنڈ میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گی، ذرا رک جائیے گا۔ بات یہ قندیل یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے، سنیے نا میری بات سنیے نا قندیل، بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ نے بالکل صحیح کیا، میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہی، ٹھیک ہے آپ کی صحیح کیا، لیکن لوگوں جب یہ آپ کا رائٹ ہے تو لوگوں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ کرٹیسزم کریں، لوگوں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ اس پہ اپنی رائے دیں، اور بڑا اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنی رائے بڑی تحمل مزاجی سے سنیں نا، لیکن اتنا بھی آپ کرٹیسزم کو بھی ایکسپٹ کریں اور اپنا جواب دیں، جواب دیجئے ان کو، کاؤنٹر کریں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بالکل صحیح ہیں تو۔ اچھا تو یہ آپ کی بات کرنے کا طریقہ ہے محترمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری وجہ سے ان کو کام نہیں مل رہا، آپ میری ایک یہ بس میرا یہی بات کرنے کا طریقہ ہے، میرا یہی بات کرنے کا طریقہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، اچھا میری وجہ سے ہرڈلز آ رہی ہیں کام میں، اچھا ایک سیکنڈ آپ پہلے میری بات تو سنیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ میں مفتی صاحب سے ذرا بات کر لوں، ماریہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ماریہ ایک منٹ واپس آتے ہیں، ماریہ واپس آتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، وہ عمران خان کو اوپنلی شادی کی پیشکش کر رہی ہیں، وہ شاہد آفریدی کو میچ جتوانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے لیے صرف ڈانس کروں گی، اور پھر یہ پاکستان کی میڈیا سے نکل کر یہ بات انڈین میڈیا تک پہنچی ہے، وہاں پر یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ایسے موقع پہ اور پھر اس قسم کے کامنٹ آنا، جس طرح وہ خود کہہ رہی ہے کہ کبھی عمر اکمل مجھے فون کر رہا ہے، کبھی دیگر لوگ مجھے فون کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے پتا نہیں تھا کہ جو کچھ ابھی آپ نے بتایا ہے تو مجھے پتا چلا ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو انہوں نے شرعی اعتبار سے بھی ناجائز کیا ہے، ہمارے کلچر کے اعتبار سے بھی ناجائز کیا ہے، اور اخلاق اور قانون کے اعتبار سے بھی ناجائز کیا ہے۔
इस तरीके से किसी के साथ ये करना, मैं समझता हूँ कि यही चीज है जो हमारे मुल्क को जो है मगरिब की तरफ ले जा रही है, मगरिब कल्चर की तरफ ले जा रही है। और ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे नौजवान तबके को, नौजवान बच्ची और बच्चों को तबाही की तरफ ले जा रही है। लिहाजा किसी सूरत में भी जब ये चीज बाहर आ गई है तो मैं समझूंगा कि शरन कानूनन अखलाकन ये सब नाजायज है। नादिया, मैं एक बात कहूंगी कि इस तरह के जो लोग हैं ना, ये सिर्फ ना रात की रौनकें बन सकते हैं, घर की जीनत नहीं बन सकते हैं। आगे से ये कह रही हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। अरे भाई, आप जैसी लड़कियां हैं जिनकी वजह से अच्छे घरों की लड़कियां नहीं आ सकती हैं। अच्छे घरों की लड़कियां घरों में बैठे ना, मैं तो यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। आई तुम बड़ी नहीं, आप टीवी पे क्या करने आई हैं? आप स्ट्रिप्टीज करने आई हैं टीवी पे? आप क्या ये मैसेज दे रही हैं कि अच्छी घरों की लड़कियों को टीवी पे नहीं आना चाहिए? वो बार बार मुझे क्यों क्लेम कर रही है कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है? मुझे एक बात बताए नादिया, नहीं कर सकते, वो ये करते हैं। कंदील, यार तुम तो अपना मुंह बंद रखो प्लीज, आप इससे बात कर लें। बीबी तुम भी अच्छा, अपना मुंह बंद रखो। कंदील एक सेकंड, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से फतवे भी आ गए। अब वो मुझे नहीं पता वो जाली फतवे थे या असली फतवे थे। कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से कुछ भी नहीं जो आपका फेसबुक पेज भी बंद हो गया। आपको लगता है कि कुछ कहीं कोई गलती हुई है, इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था? इतना अगर आपका मकसद उनका मोराल हाई करना ही था, उनको बकअप करना ही था पाकिस्तानी टीम को, तो कुछ डिफरेंट भी किया जा सकता था। आपको कहीं लगता है कि कुछ गलत हो गया है? मैंने स्ट्रिप्टीज नहीं किया, तभी लोगों को तकलीफ है एक्चुअली। आपने ट्रेलर जारी किया? यस, मैंने ट्रेलर जारी किया। वो ऑन स्क्रीन, वो हम स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकते। वो लोगों ने वैसे ही देख लिया होगा, आई गेस। ट्रेलर देखें, मेरे उस ट्रेलर में इतनी को खास बुराई नहीं थी, ठीक है। आपको क्या कमर्शियल थिएटर नजर नहीं आते लाहौर के? वहाँ पे क्या हो रहा होता है, मैं ओपनली कह नहीं सकती, कहते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई आवाज, पाबंदियां भी लगी है ना, मेरा ख्याल है कोई पाबंदी नहीं लगी, चल रहे खुले आम चल रहे वहाँ पे, सारा कुछ चल रहा है। पता था कि हाँ, नहीं, मुझे ये पता चला था कि जो कुछ ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उन पे कुछ पाबंदियां भी लगी थी, कुछ लोगों पर कुछ चल रहे हैं, अभी भी ओपनली चल रहे हैं। उसके ऊपर कोई नहीं, आई मीन बोलता। वो तो मेरा तो स्ट्रिप्टीज फिर भी बेहतर था जो वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे जाके देखे ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात सुने, आप एक एक्ट्रेस भी अपने आप को कहती हैं और आप अपने आप को एक सिंगर भी कहती हैं। मैं एक्ट्रेस भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, यस, ठीक है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि जिस तरह से दीगर एक्ट्रेसेस हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं, वो प्रोग्राम्स में भी जा रही हैं, वो ड्रामास भी कर रही हैं, वो किस तरह से जा रही हैं, वो गाने भी कर रही हैं, वो जिस तरह से जा रही है, उस तरह से जाना नहीं चाहती। आपने जिस राह का इंतखाब किया उस पर कितने लोग चल के आ गया है, मुझे ये बता दें। अच्छा, सॉरी, मैं ये कह रही हूँ जिस रास्ते का इंतखाब आपने किया, वो लोग ये कहते हैं कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था एंड नथिंग एल्स। देखिए, मैंने चल के और कितने लोग आगे आए। मैंने पाकिस्तानी मीडिया से मैंने पहले भी कहा था मुबशर के शो में कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, ठीक है। यहाँ पे टैलेंट को बिल्कुल ओब्लाइज नहीं किया जाता। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत कोशिश की। मैं उस तरह से इस इंडस्ट्री में आगे नहीं आना चाहती जिस तरह से बाकी एक्ट्रेस आती हैं। देखिए, करते सब है, लेकिन ये है कि मैं बस थोड़ी सी ओपन माइंडेड हूँ, बोल देती हूँ। बिहाइंड द कैमरा सब कर रही होती हैं, सब कर रही होती है। किस तरह से कोई सब कर रहे होते हैं, जाहिरी सी बात है। सब पे इल्जाम लगा रही है या नहीं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रही। ये पड़ा हो, शायद इनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा हो। मेरा वास्ता सबसे बड़ा है, मैं सबको जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री को। समझ आई ना, वो जानते हैं। अच्छा, ऐसे ही नहीं यहाँ पे तो मैंने तो आपको देखा भी नहीं है, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है। कौन हो तुम? इसलिए तो कभी आगे नहीं आई ना, इसीलिए तो कभी आगे नहीं आई ना। बोलो ना, क्या होता है यहाँ पे, बताओ ना, किस तरह से होता है यहाँ पे शोबिज इंडस्ट्री में, किस तरह से यहाँ पे लड़कियां आगे आती हैं, बताओ इनको। एटलीस्ट मैं उन सबसे काम करके आती हैं। क्या कर कौन सा काम करके आती है, बताओ जरा। सिर्फ कौन सा काम करके आती है? दैट्स ऑल। मैं बदनाम नहीं कर रही, मैं बदनाम नहीं कर रही, ये लोग नहीं चाह रही है, सिंगर है, आप बदनाम कर रही हैं। नहीं, मुझे बताएं, आप क्या समझती हैं? मुझे बताएं के लोग क्या सोचेंगे? हमारी क्या
काम करके आगे आती हैं। आप हम भी घरों से आए हैं, हमारी भी शादी हुई है, हम भी घरों में रहते हैं, फैमिली वाले, हमें तो कोई वो मसला नहीं है। लेकिन आपके इस तरह के कमेंट्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन को बहुत मसले होने वाले हैं। आप इस तरह के कमेंट्स आपको देख आगे बढ़ेंगे इस तरह से। आप भी किन को देख कर आए हैं? अच्छा मुफ्ती साहब, तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है? फेमस होना चाहती है मेरे साथ लड़ाई करके। हो जाओगी बेटी फेमस तुम, उफ अल्लाह, फेमस आपने कंदील आपने ये सब फेमस होने के लिए किया है? फिक्र नहीं करो। आपने ये सब फेमस होने के लिए किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेरा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरा जो दिल करता है, मैंने तो कब से शोबिज इंडस्ट्री को गुड बाय बोल दिया है, बहुत टाइम पहले। ठीक है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करती हूँ, मेरा जो दिल करेगा मेरा दिल करेगा मैं सिंगिंग करूंगी, मेरा दिल करेगा मैं डांस करूंगी, मेरा दिल करेगा मैं अपना फोटोशूट लगाऊंगी। क्या है, सोशल मीडिया है। एक सेकंड, ठीक, मैंने कब का गुड बाय बोल दिया शोबिज इंडस्ट्री को? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। करने चाहिए, कपड़े नहीं उतारने चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने सोशल मीडिया की दोनों चीजें बयान की कि क्या सोशल मीडिया से आप अच्छा भी देख सकते हैं, क्या बुरा भी देख सकते हैं, हर चीज का इस्तेमाल उसी तरीके से होता है, आपके अपने ऊपर ये चीज होती है। बट अगेन अगर ये बात हो रही है कि जी सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया की सिर्फ हम बुराई नहीं कर सकते, किसी भी चीज को सिर्फ उसकी नेगेटिविटी को हम पोर्ट्रे नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या हो, क्या ये वाकई इस चीज को हम मादर पिदर आजाद रहने दें, या फिर ये सोच के कि जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें किसी किस्म का कदगन नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि कम से कम कोई ऐसा फिल्टर हो, कोई ऐसा प्रोसेस हो, कोई ऐसा प्रोसीजर हो कि जहां से इस किस्म की चीजें सामने ना आए, या क्या होगा, क्या करें, क्या कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ का कल्चर मगरिब और दूसरी जगह से बड़ा मुख्तलिफ है, लिहाजा बिल्कुल इन तमाम चीजों पर पाबंदी होनी चाहिए। और साइबर को और दूसरे हुकूमत के इदारे हैं, उनको चाहिए कि इस पर नजर रखें। इस तरीके से हमारे नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां जो इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं, मजहब से ताल्लुक रखती हैं, वो दूर से दूर होती चली जाएंगी। और एक वक्त आएगा कि फिर जो है हमारे हुक्मरान भी चाहेंगे, मैं अपने घर में भी चाहूंगा, आप भी अपने घर में चाहेंगे, तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने अल्लाह के रसूल और कुरान पाक और आखिरत को देखना है, चाहे रेटिंग आए या ना आए। जहाँ तक बात है ना, मेरा जमीर है, मेरा वो है, मैंने कब्र में जाना है, मैंने खुदा को जवाब देना है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे मेरे ऊपर फतवे ना झाड़े, कोई जरूरत नहीं है, मैंने मरना है, मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। मुफ्ती साहब, एक फतवा भी जारी हुआ और वो मेरे सामने, उसमें ये कहा गया कि जी जो कंदील बलोच की वीडियोस को शेयर करेगा वो भी गैर शरई है, वो भी हराम होगा, जो फेसबुक पे जाएगा वो भी हराम होगा, उसका वो देखना भी हराम है। तो आप अब मुझे नहीं पता ये फतवा असली है या फतवा जाली है, ये मुफ्ती रफी उस्मानी के नाम से ये फतवा सर्कुलेट कर रहा है। आप इस किस्म के फतवे को की तायीद करते हैं? कम से कम ऐसा कोई फतवा होना चाहिए क्या मौलवियों की तरफ से? मेरा ख्याल ये कि मुफ्ती रफी साहब ने फतवा नहीं दिया होगा, और मैं भी कभी ऐसा फतवा नहीं दूंगा, इसलिए कि इन फतवे देने से कोई मसले हल नहीं होंगे। मसले अगर फतवे देने से हल हो जाते तो मैं मोहतरमा को कहता कि जामे बिनोरिया में आकर कुरान और हदीस सीखे, तो बहुत अच्छा होगा, मैं फतवा देने को तैयार हूँ। बात यह है कि हमें इन चीज को नहीं देखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेकर आए तो चंद लोग आपके साथ थे। बात यह है कि हमें दीन की बात पहुंचानी है, वो ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये कि हमें अपने दीन, अपने कल्चर, ठीक है ना मुफ्ती साहब, मसला ये कि जाहिर है वो देखना जो है दीन, ये आपका काम है, इसलिए कि आपको कारोबार करना है, आप अपनी रेटिंग जिस तरह चाहे बढ़ाए, वो आपका अपना मामला है। ठीक है। अच्छा मारिया, अब आप मुझे बताइएगा। मैं समझती हूँ कि इन्होंने जी मारिया ये जो कह रही हैं कि एक जो शोबिस की पर्सनालिटी है, या जो लोग हैं, जो एक्ट्रेस हैं, ये जो भी हैं, वो एक दुकानदार की तरह ही होते हैं, मतलब अपनी दुकान खोल के बैठते हैं कि कोई आके, अब उनकी अपनी मर्जी है कि वो वहां पर बेच क्या रहे हैं, ऐसे ही है। देखिए, एक्टर इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, सेलिब्रिटी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, हम पे लोगों को कमेंट्स करने का पूरा राइट है। दिस इज योर चॉइस कि आप अपने आप को किस तरह लेके चलते हैं, कि लोग आपको अच्छे मायनों में याद रखें या बुरे मायनों में याद रखें, लोग आप पे क्रिटिसाइज करें या आपकी तारीफ करें। कंदील, आपको मैं जो कमेंट की हरकत को इमेच्योरिटी समझती हूँ, इनको भी ये मेच्योर नहीं है, इनकी जो बातें हैं ये एक बहुत ही ओछी हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। और मुझे अफसोस होता है कि हमारा मीडिया ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों करता है। ऐसे अब ये प्रमोट हो रही है, ये
इनको और चाहिए कि इन्होंने किया किस लिए था? नहीं, मैं तो मैंने बता दिया मेरी बहन ये कंदील कंदील लेकिन सुने, कंदील आप कह रही है ना, कंदील आप कह रही है ना, आपकी जो मर्जी चाहे आप वो बेचे, जो मर्जी चाहे वो करें, क्योंकि आप दुकानदार हैं। मुझे ये बताएं, आपका हर फेसबुक पेज आर्टिस्ट बंद हो गया? दुकानदार की तरह होता है। मेरा अच्छा सुनिए ना, आपका फेसबुक बंद हो गया, मेरा मैं होता वो नहीं हो सकता। फेसबुक पेज आपका बंद हुआ ना, आपका ब्लॉक किया गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मुझे ये कहा गया मेरी टीम की जानिब से कि जो कंदील बलोच के लिए जिस किस्म के कमेंट लोगों ने दिए हैं वो भी जरा प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा। मुझे एक राय दी गई अपनी टीम की तरफ से। मैंने जब वो कमेंट देखे तो मैं उन कमेंट को तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो मैं अपनी प्रोग्राम में शामिल करूं, या मैं उनको ऑन स्क्रीन लेकर आऊं, या मैं उनको ऑन स्क्रीन पढ़ सकूं। मुझे हैरत ये हो रही है कंदील कि आप एक लड़की हैं और आपके लिए अगर इस किस्म के कमेंट आ रहे हैं, इस किस्म के आपके लिए रिमार्क दिए जा रहे हैं, आपका जिसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रही हैं आप इस चीज को कंटिन्यू भी रखेंगी। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं कमेंट्स ना ही पढ़ती हूँ ना मैं देखती हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आई डोंट केयर, लेट देम बार्ग। आप ये किसके लिए कर रही हैं? लोगों के लिए कर रही हैं ना? लोगों के लिए, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। नादिया ये सब अपने लिए कर रही है। नहीं, अपने लिए कैसे कर रही है? अपने लिए कर रही होती तो बंद कमरे में कर रही होगी, वीडियो बना के खुद देख रही होगी, सोशल मीडिया पे डाल रही है। यार शट अप, ओके तुम तो चुप करो, बीच में तुम क्यों बोलती हो? मसला क्या है तुम्हें? हाँ, पता नहीं किसको बिठा दिया बीच में। ये तो तुम्हारा अंदाज है। फिर तुम कहती हो मैं बलोच खानदान से हूँ, तो ये तुम्हारी वैल्यूज हैं। सो सैड बाय द वे। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इस तरह की हो। आई सीरियसली बैड फॉर यू, आई सीरियसली फील बैड फॉर यू। पहले कौन सा अच्छा सोचते थे? आई सीरियसली तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत बदतमीज हूँ, बदतमीज। ओके अच्छा कंदील आपने कल के प्रोग्राम में भी आपने ये कन्फेस किया कि लोग आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, लोग आपको बुरा कहते हैं। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट वीडियो, बिफोर दैट ऑल्सो, बिफोर दैट ऑल्सो बिकॉज क्यों? उससे पहले मैंने क्या किया था? कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों आपके बारे में राय कायम? देखिए मुझे खराब करने वाली तो ये अवाम है ना। ये तो अभी मसला शुरू हुआ है ना स्ट्रिप टीज वाला। इससे पहले मैंने क्या किया था? आपको क्यों खराब किया? मुझे नहीं पता। अवाम ने तो अब सीधा करने की कोशिश की है। तो सीधा क्या? बीबी तुम्हारा अवाम ने तो तुम्हें सीधा करने की कोशिश की है। और तुम जैसे बहुत से लोगों को मैं हो गई सीधी जलेबी की तरह हो गई मैं सीधी। आप बताओ, मैं बहुत सीधी हूँ। हाँ हो गई। हाँ अच्छा कंदील बलोच, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये तो इतना कुछ हो गया, मतलब दिस इज द हाइट ऑफ एवरीथिंग। आप पे इतना क्रिटिसिज्म, आपके लिए ऐसे रिमार्क्स, आपका इमेज सारा खत्म होके रह गया। अब आगे क्या करना है? क्या करूंगी मैं? पहले क्या कर रही हूँ? पहले भी तो कुछ नहीं। अब क्या करेंगी? आगे क्या करेंगी? कुछ पहले क्या कर रही अब आपकी मीडिया इंडस्ट्री में अब आप ये समझती हैं कि आपकी वहाँ पे कोई गुंजाइश मुझे मैंने पहले भी बोला था नादिया कि मैंने इस मीडिया इंडस्ट्री को बहुत पहले से गुड बाय बोल दिया था। बिकॉज इस मीडिया इंडस्ट्री ने मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया, ना ही मैं ऐसे ठरकी लोगों के बीच में काम कर सकती। अच्छा एक चीज आपने और भी की कि मैं जी जिस चीज ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे बात करूं, वो जो कल का आपका प्रोग्राम था और वो बशीर लुकमान के साथ जो आप प्रोग्राम कही थी, आपने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखें कि मैं अवाम के साथ क्या करती हूँ। इससे बुरा अवाम के साथ आप और क्या करेंगी? अवाम मेरे साथ भी तो करती है ना ज्यादती। आप क्या करेंगी? अवाम बेसिकली मैं अब आप करेंगी क्या? मैं क्यों बताऊं? आपने कहा बुराई का तो अब स्टार्ट हुआ। बुराई तो अब स्टार्ट हुई। मैं तो बुरी हूँ ना। मैं कुछ ना करके भी बुरी थी, अब मैंने कुछ किया है, अब ये स्टार्ट है। अब देखें अब क्या होता है। मैं तो है आपके जहन में? नहीं, प्लानिंग तो नहीं बता सकती ना अब आपको। मैं तो समझती हूँ कि हाँ मैं आप तो समझती हैं कि मुझे फांसी पे लटका दे। आप तो ये समझती है ना। हाँ नहीं, ये चाहेंगे कि मैं फांसी पे लटका दूं मुझे। आपको जो है ना इलाज की जरूरत है। आई फील आप थोड़ी सी साइको हैं। मैं साइको, आपको इलाज की जरूरत है। जो लोग इस इंडस्ट्री में आगे नहीं चल पाते, फेमस नहीं हो पाते, मेहनत करने से कतराते हैं, वो इस तरह के तरीकों को अपनाते हैं। मेहनत करने से कतराते हैं। ओ बबलू हेलो। जी बिल्कुल। देखो मेरी बहन, मैंने तुम्हें बहुत फेमस कर दिया। तू जा होगी फेमस, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। अच्छा
अच्छा मुझे आखिरी सुनो, देखो अगर तो मुझे फेमस होने की जरूरत होती फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं जो है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे अपने मीडिया को पोर्ट्रे करने आई हूँ कि लोग ये ना समझे कि सिर्फ तुम ही हो और तुम जो कह रही हो सारे हाँ, लोग सच्चे ये हैं, ना सारे समझे लोग कि बुरे कंदील हैं, भी है, ये लोग हो ये रहा है, वो समझे हो कि रहा है, ऐसा नहीं कुमारियाँ है। भी लोग है। मुझे भी जानते हैं, हाँ, हाँ। लोगों को मेरा इमेज भी कोई पता भी है, नहीं, कोई भी बीबी नहीं लोगों को जानता। मेरा इमेज भी पता कोई है, भी नहीं जम्मू जानता। लोगों को मैंने मेरा तुम्हें image भी पता मैंने तो है। तुम्हें पहली दफा देखा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अच्छा चले तुम्हें सोशल मीडिया पे देखा है। चले ठीक मैं है हर जगह होती हूँ। I'm यहाँ international पर- famous, okay? अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप कोई लास्ट यहाँ पर मैसेज देना चाहें तो आप इनके लिए या किसी के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, वैल्यूज पे कोई अगर आप इनको मैसेज दें, और हो सकता है कि आपकी बात इनके दिल को लग भी जाए। आखिरी मैसेज ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तुम में हया ना रहे तो फिर तुम जो चाहो करो। मैं इन दोनों मोहतरमाओं को जिक्र करूंगा कि अल्लाह के कलाम का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे। वैसे एक एग्जाम्पल हमारे सामने है ना कंदील, वीना मलिक की एग्जाम्पल हमारे सामने है। वीना मलिक ने भारत में जाके क्या कुछ नहीं किया, कैसी किसी फोटोशूट्स कराए, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद जब वो मौलाना तारिक जमील साहब से मिली और उसके बाद वीना मलिक वो भी राह पर वीना आई। मलिक मेरे राब्ते में है वीना मलिक, और वो अब आ रही हैं कराची के अंदर कुरान पाक सीखने के लिए। उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि मैं आना चाहती हूँ कि मैं अपना कुरान और दीन सीखूं। ये उन्होंने मुझे ठीक खुद है। कहा, 4 दिन पहले की बात ठीक है। है, थैंक यू वेरी मच मुफ्ती नईम साहब। कंदील, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करूंगी कि आपने कल ये भी एक जगह बात की प्रोग्राम में कि जी आपकी फैमिली भी आपसे नाराज है और जो कुछ आप करती हैं उस पर आपकी फैमिली आपसे खुश भी नहीं है। वो क्यों खुश होगी? मैं कोई बेगैरत फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती। देखिए, जो आप कुछ- मैंने जो कुछ कर रही हैं वो बेगैरती के जुमरे में आता है। मैंने पहले भी कहा था नादिया, मुझे खराब करने वाली ये अवाम है। मैं कुछ नहीं करती थी, मुझे इस अवाम ने बहुत बिगाड़ा है। क्यों मुझे गालियां अगर आप इस अवाम की वजह से खराब हुई हैं, सुने, अगर आप इस अवाम की वजह से खराब हुई हैं तो कुछ ऐसे लोग भी तो है ना जो आपको सुधार भी सकते हैं। मुफ्ती नईम साहब जैसे लोग भी हैं, मौलाना तारिक जमील जैसे लोग भी हैं, उनसे राब्ता कर लें। क्या ख्याल है? मैंने कहा था ना, मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ। जिस चले I खैर, mean, ये तो मुझे आपकी अपनी उन्होंने- बात है, ये मुझे तो अपनी उन्होंने बात गालियां है। दी, मैं कुछ नहीं कोई करती चीज थी। इम्पोज नहीं कर सकती, मैं कोई चीज अपनी इम्पोज नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये तो आपके ऊपर है कि जिस वक्त आपकी जहन में ख्याल आ जाए। बट अगेन मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक आपने इमरान खान साहब को भी शादी का प्रपोजल दिया था। आर यू स्टिल ऑन दैट? ऑफ कोर्स, मैं तो अभी भी इमरान खान के रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। मैंने आपने ये रेहाम से अलहदगी के बाद दिया था? रेहाम से अलहदगी से मैंने पहले दिया? रेहाम खान से जैसे उनकी तलाक हुई थी, मैंने फौरन उनको प्रपोज किया था, बिकॉज मेरे दिल में उनके लिए, इमरान खान के लिए जज्बात बहुत पहले से थे। जब वो धरना कर रहे थे रेहाम खान से शादी से पहले, मेरे दिल में था धरनों कि में मैं जाती उनको- थी आप? नहीं, मैं धरनों में नहीं जा सकती, जा सकी। उस टाइम पे मैं आउट ऑफ कंट्री में थी, बट मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी धरनों में और मैं ये प्रपोजल दूंगी। लेकिन बाद में पता चला कि इमरान खान की रेहाम खान से शादी हो गई है, एंड देन जब डिवोर्स हुआ तो फिर मुझे सही राइट टाइम लगा। मैंने कहा मुझे अब प्रपोज करना चाहिए इमरान खान को, बिकॉज जवाब आ गया? आपको मिला जवाब? नहीं, अभी तक मैं वेट कर रही हूँ उनके जवाब का। उम्मीद है आपको मिल जाएगा? चले, कहते हैं ना, अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद है मुझे। सो लेट्स सी। ठीक है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। मारिया, आप क्या करें? क्या अब मीडिया ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करे? ये आपकी राय है कि मीडिया प्रमोट कर रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, और वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें? जरूरत है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इनका जो पेज ब्लॉक किया गया है, उसकी मुझे बड़ी खुशी है कि आइंदा इस तरह की हरकत कोई करेगा तो पहले सोचेगा कि उसका रिएक्शन क्या होगा। आवाम चुप नहीं बैठेगी, आवाम गलत को गलत और सही को सही कहेगी। और मुझे नहीं लगता कि इनको इस तरह की हरकत दोबारा करनी चाहिए, या इनको देख के किसी को इनको फॉलो भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो गायब कर देना चाहिए। आए थे, गए, कहाँ गए पता नहीं चला। पर्सनल होने के लिए नहीं कहने बैठे हुए, हम वाली सही को के सही और गलत को गलत कंदील कहने के लिए बलोच बैठे को हुए। गायब कर देना चाहिए। कंदील तो बलोच तुम का कौन पेज होती गायब हो? कर देना। तुम कौन होती हो कौन तुम? मैं तो ऐसे लोगों को गायब कर देना चाहिए। अरे भाई, ऐसे लोगों को गायब कर देना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें ना करें, माशरे में बिगाड़ पैदा ना करें। माशरे में बिगाड़ ऑलरेडी क्या माशरे में अच्छा हो रहा है, माशरे में बिगाड़ ना पैदा करे।
میں پروگرام کو ختم کرتی ہوں. قندیل بلوچ, میں چاہوں گی کہ آپ اپنی فیملی کے لیے ایک میسج میرے پروگرام میں چھوڑ کے جائیں. نہیں, میں فیملی کے لیے کوئی میسج نہیں دینا چاہوں گی. فیملی کے لیے میں خود سے بھی میسج دے سکتی ہوں, ٹی وی کے تھرو نہیں دینا چاہتی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ قندیل بلوچ پروگرام کو جوائن کرنے کا. ماریا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. مفتی رحیم صاحب کا شکریہ ہم آلریڈی ادا کر چکے ہیں. بات یہاں پر یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم ججمنٹل نہیں ہونا ہمیں کسی کے لیے بھی, لیکن بہرحال جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ کامنٹ ضرور کر سکتے ہو. یہی میری کوشش تھی کہ بجائے اس کے کہ میں صرف اس پہ اپنے کامنٹ کروں یا میں اپنی رائے اس پہ امپوز کرنے کی کوشش کروں. ہم نے اپنے پینلسٹ کو دعوت دی, مفتی رحیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی رائے بھی آپ نے سن لی. جو ماریا تھی وہ بھی ایک ایکٹریس ہیں اور بڑی میڈیا انڈسٹری میں ان کا اپنا ایک نام ہے, ان کی بھی اپنی رائے ہے. وہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ میڈیا انڈسٹری کو بدنام کرتے ہیں, لیکن بہرحال قندیل کی اپنی ایک رائے ہے. وہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا. جس دن وہ سمجھیں گی کہ انہوں نے غلط کیا وہ اس کو خود ہی سدھار لیں گی. فیصلہ آپ کا ہے اور سوچیے گا بھی آپ ہی, رائے بھی آپ ہی دیجیے گا. ناظرین میں سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.